نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یتبعون الرسول النبی الامی، وقال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ذرا آواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ احباب اونچی آواز سے پڑھیں، ذرا یہ چادروں سے منہ نکالیں، بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سردی اتر جائے گی، ذرا اونچی آواز میں۔ پچھلے دوست بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مالک لم یزل کا بے پناہ لطف و احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنے حبیب علیہ السلام کے جشن منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے ارض و سماوات کا رب یہ گھڑیاں اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہو آمین۔ ایڈی ٹھنڈ لگن نہیں، کہو ذرا آمین۔ تسی بولو گے تو میں خطاب کرنا ہے، کہو آمین۔ ہاں، بول کے بیٹھنا ہے۔ تو پھر پڑھے سبحان اللہ۔ آپ آئے ہیں گھر سے، وقت انسان کا گزر جاتا ہے، یاد رکھنا، وقت انسان کا گزر جاتا ہے، وہ کسی حال میں بھی گزر جائے، کوئی سو کے گزار دیتا ہے، کوئی گپ شپ میں گزار دیتا ہے، کوئی کسی عمل میں گزار دیتا ہے، کوئی کسی عمل میں۔ یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہے نا، یہ نہیں رکا کرتی، یہ کبھی نہیں رکتی، وقت گزر جاتا ہے، مگر بہترین اور عمدہ وقت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے۔ یہ قیمتی وقت ہے۔ آتا ہر کوئی ہے، میرا ایک جملہ یاد رکھنا، آتا، پھر بولے آتا ہر کوئی ہے، بیٹھتا بھی ہر کوئی ہے، بیٹھتا بھی، لیتا کوئی کوئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یار چادر چو منہ کٹو نا، بولو ہیں۔ آتا ہر کوئی ہے، بیٹھتا بھی، تسی بولو، آپ نے نہیں بولنا، ہاں جی، بیٹھتا بھی ہر کوئی ہے، لیتا کوئی کوئی ہے۔ میلہ ہوتا ہے نا، میلہ، سب سیاں رل پانی نو آئیاں، میاں صاحب نے فرمایا سب سیاں رل پانی نو آئیاں تے کائی کائی مڑسیا بھر کے آئی، سب ہے، سب سیاں رل پانی نو آئیاں تے کائی کائی مڑسیا بھر کے تے جنہ بھر کے سر تے دریا قدم رکھن ڈر ڈر کے۔ وہ سوچ سوچ کے، آتا ہر کوئی، یہ میلے ہیں اللہ نے لگائے ہیں، آتا ہر کوئی ہے مگر لیتا کوئی کوئی ہے۔ آپ میلے میں جاتے ہیں، آپ کے علاقے میں میلہ لگتا ہے؟ میں آپ کو ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، پھر موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میلہ لگتا ہے نا، میلہ لگتا ہے، اوپن میلہ ہوتا ہے، ہر کوئی آتا ہے، وہاں مٹھائی کی دکان بھی ہوتی ہے، کھلونوں کی بھی ہوتی ہے، کھیل تماشا بھی ہوتا ہے، ہر بندہ آتا ہے۔ میلے میں آیا، اپنے اپنے رنگ کی چیز دیکھی، کسی کو کھلونے پسند آئے، کسی کو مٹھائی پسند آئی، کسی کو کبڈی پسند آئی، کسی کو کوئی رونق پسند آئی۔ الغرض ہر بندہ اپنے اپنے مدار، اپنے اپنے ٹیسٹ، اپنے اپنے ذوق کے مطابق کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے۔ اور کچھ آتے ہیں ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں، دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، وہ بھی تو میلے میں ہی گئے،
ऐसे ही है ना। लेकिन कमाल क्या है, मेले में आना कमाल नहीं है, ले जाना कमाल है। मेले से कुछ ले जाना। आप सर्दी के मौसम में आए हैं, ठंडक में बैठे, नींद छोड़ी, बिस्तर छोड़ा, घर बार छोड़ा, हर चीज छोड़कर यहां आके क्यों बैठे हैं? कुछ लेने आए हैं ना, लेने आए हैं ना, तो फिर लेके जाएं। खाली तो नहीं जाना चाहिए। आना, वो ख्वाजा साहब ने फरमाया था ना, बाबा साहब ने, उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखण जा। उठ फरीदा सुतिया ते बोलो ना, मेला वेखण जा। जे कोई तैनू बख्शिया मिले तू भी बख्शिया जा। यानी मिले कोई, किसी के साथ तेरा हाथ टच हो जाए, किसी के साथ लम्स हो जाए, वो कहता है मैं तेरे आने को नहीं देखता, मैंने तो उसको देखा जिसके साथ तू बैठा था, जिसके साथ तू था। अब तुझे क्या पता कि इसका उससे क्या रिश्ता है, इसका उससे क्या रिश्ता है। तो आए तो सवाली बन के आए, आए तो क्या बन के आए? सवाली। लेकिन सवाल ना करें, सवाल ना करें, खैरात के लिए झोली फैला के बैठे। हाय हाय, मांग के ली तो क्या ली, मांग के ली तो देने वाला होता ही कामिल वो है जो मिन मांगे दे। बस लेने की नीयत होनी चाहिए। मैंने आपके सामने आया मुबारक तिलावत की, खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, ये कायत का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी बात टेक्निकल होगी, सुने आगे आसान हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी, कि ये उस रसूल की पैरवी, उसकी पैरवी करते हैं जो रसूल भी है, नबी भी है और उम्मी भी है। क्या दोहराएं? जो रसूल भी है, नबी भी है और उम्मी भी है। अब देखें रसूल किसे कहते हैं? जो अल्लाह का पैगाम मखलूक की तरफ लाए उसको कहते हैं रसूल। क्या कहते हैं? रसूल। बोले बोले क्या कहते हैं? जो अल्लाह का पैगाम मखलूक की तरफ लाए वो कौन होता है? रसूल। यानी अल्लाह की बातें बंदों को बताए, वो कौन होता है? रसूल। नबी की डेफिनेशन ये है कि जो नबा से है, नबा कहते हैं खबर को, इसका मतलब होता है जो खबरें लाए, जो क्या करे? बोले बोले क्या करे? खबरें लाए, और खबरें भी गैब की लाए। खबर होती वो है जो आप ना जानते हो और आपको कोई बताए, उसको कहते हैं क्या? खबर। अब रसूल कौन है? जो अल्लाह का पैगाम बंदों की तरफ लाए, और नबी वो है जो गैब की खबरें लाए। बात एक ही है, जो उसकी लाए, जो उसकी बात को लाए, वो क्या होता है? नबी और रसूल। अब तीसरा लफ्ज, अब होता ही वो है नबी और रसूल जो कुछ जानता हो, जो कुछ है। अगर हमें सारी बातों का पता होता तो रसूल क्यों भेजता, नबी क्यों भेजता? नबी और रसूल भेजे इसलिए हैं कि वो हमें जो नहीं पता वो बताएं, वो बताएं। अब अगला लफ्ज जो है उसको कह दिया उम्मी। क्या कह दिया? आज की गुफ्तगू का मौजू लफ्ज उम्मी है। अब उम्मी का आम तौर पे माना किया जाता है अनपढ़। क्या? बोले बोले क्या? जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, मुझे बात करने का मजा नहीं आएगा। क्या माना है? हाँ, अनपढ़। उम्मी का माना आम तौर पे किया जाता है अनपढ़, लेकिन हम इस माने को नहीं मानते। अनपढ़ नहीं है, लेकिन तो पीछा फिर बारी ताला, जब रसूल भी कह दिया, नबी भी कह दिया, खबरें भी देता है, गैब की भी देता है, वो पहुंचाता भी है, फिर तूने उम्मी क्यों कहा? उम्मी कहने की क्या जरूरत आई थी? किस लिए कहा? तो फरमाया लोगों, उम्मी इसलिए नहीं कहा कि वो जानता कुछ नहीं है, बल्कि उम्मी इसलिए कहा कि रहता भी तुम में है, खाता भी तुम्हारी तरह है, पहनता भी तुम्हारी तरह है, चलता भी तुम्हारी तरह है, जिंदगी भी तुम्हारी तरह है, बैठता भी तुम में है, मगर तुम में से किसी से नहीं पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम में से किसी
से नहीं पढ़ा, फिर भी है उम्मी। न तुमने उसे किसी कॉलेज जाते देखा, न तुमने उसे किसी आलिम के पास जाते देखा, न किसी राहिब के पास जाते देखा, न किसी मदरसे में जाते देखता, फिर भी बैठता मस्जिद नबवी में है, खबरें जन्नत की देता है उम्मी। है कौन है? बोलो बोलो, कौन है? उम्मी। लफ्ज याद कर लो, भूलना नहीं चाहिए। क्या लफ्ज है? उम्मी। कहता है उम्मी, मगर फिर भी चलता मक्के की गलियों में है, खबर जन्नत की देता है। खबरें कहां की देता है? एक सहाबी थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे फरमाया, इधर आ, तुझे एक बात ना बताऊं। अर्ज की, आका बताएं। आपने फरमाया, तुझे ना बादशाह था एक कैसर रूम, वो ना मोटे मोटे कंगन पहनता था सोने के, कंगनों वाला बादशाह मशहूर था। हुजूर ने फरमाया, तुझे एक बात ना बताऊं। अर्ज किया, बंदा नवाज बताएं। फरमाया, तुझे तब तक मौत नहीं आएगी जब तक तू उस बादशाह के कंगन नहीं पहन लेगा। नहीं समझ आए? तुझे तब तक मौत नहीं आए। हुजूर बता रहे एक सहाबी को, सुनना है नबी उम्मी, और आका साल पहले बता रहे कि तुझे तब तक मौत नहीं आएगी जब तक उसके कंगन नहीं पहन लोगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाहिरी ज़माना गुजरा, सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत आया, आपके दौर में जंग हुई। सुनना तवज्जो से, जंग हुई, एक किले का मुहासरा किया गया, यहूदियों के किले का। किला फतह नहीं हो रहा था, किले का दरवाजा नहीं खुल रहा था। उस सहाबी ने ना उन बाकी सहाबा से, लोगों से कहा, मुझे मजनीक में बिठाओ। वो मजनीक होती थी उस दौर में, पत्थर डाल के यूं घुमा के फेंका करते थे, वो अंदर आग के गोले या पत्थर फेंकते थे किलों में। सहाबी ने कहा, मुझे इस मजनीक पे बिठाओ और घुमाकर अंदर फेंको, मैं अंदर से जाके दरवाजा खोलता हूं। मैं अंदर से जाके, उन्होंने क्या जल्ला हो गया। पहली बात तो तू जब जाके गिरेगा तो तेरे पल्ले शायद कुछ नहीं बचनी, और अगर बच भी गया तो जिनके पास गिरेगा वो छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। उसने कहा, घबराओ नहीं, मुझे फेंको। ताड़ी चुप, मुझे फेंको। उन्होंने कहा, तू इतने वसूख से क्यों कहता है? वो कहता है, मुझे फेंको, मुझे मौत नहीं आएगी। मुस्तफा ने कहा था कंगन पहनने, अभी कंगन नहीं पहने। तारीख गवाह है, उस सहाबी को फेंका गया, उसने दरवाजा खोला, हजरत उमर का दौर आया, बीमार हो गए। लोग आके कहते, तेरी मौत करीब है। कहता, हाले नहीं, हाय हाय हाय, अभी मौत नहीं आएगी। कहा, क्यों नहीं आएगी? कहा, अली सजना दी गल जो नहीं पूरी हुई, अभी कंगन नहीं पहने। हजरत उमर के दौर में जाकर रोम फतह हुआ। रोम सुपर पावर था उस दौर की, रोम फतह हुआ। उस बादशाह के कंगन के अक्सर रोम का खजाना मस्जिद नबवी के दरवाजे पे ढेर पड़े हैं। हजरत उमर ने उस सहाबी को बुलाया, फरमाया, ये तेरे कंगन, हाय हाय हाय, ये तेरे कंगन। उसने कंगन पकड़े और कहता है, होना के का वो वक्त आ गया। लोगों, अब मुझसे कहो कि वक्त आ गया है। अरे ये सालों के बाद वाकया होना है। जिस नबी को उम्मी कहते हो वो पहले बता रहा है, तुझे मौत तब आएगी जब कंगन पहनोगे, तुझे मौत तब आएगी जब। तो कहा, ये मेरा नबी उम्मी है। क्या है? उम्मी। तुम्हें लगता है कुछ नहीं जानता, तुम्हें लगता है कुछ नहीं जानता, तुम अनपढ़ समझते हो, मगर ये अनपढ़ नहीं है, ये तो तब का भी जानता है जब तुम थे ही नहीं, जब तुम थे ही नहीं। जमाना गुजरा। आओ अब कुरान से दलील देता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से कमोबेश 50 दिन पहले, अभी हुजूर ज़ाहिरी पैदा नहीं हुए, मां के पेट से बाहर नहीं आए, एक अबरहा शख्स था, उसने हाथियों की फौज लेके आया खाना काबा को गिराने के लिए। 50 दिन पहले अल्लाह ने अबाबील की फौज भेजी, छोटी छोटी चिड़ियां, उनके मुंह में ये सरसों होती ना, राई, उसके दाने के बराबर कंकरी होती थी। वो कंकरी लाकर जिस हाथी पे फेंकते, वो हाथी और सवार तबाह हो जाता। ये वाकया कितने दिन पहले हुआ? 50 दिन। तवज्जो करना, हुजूर की विलादत से कितने दिन पहले? 50 दिन।
और आका पर कुरान कब उतरा? 40 साल के बाद। कितने साल के बाद? बोलो बोलो, कितने साल के बाद? 40 साल। विलादत से पहले हाथियों का वाकया हुआ, कुरान उतरा 40 साल के बाद। अब 40 साल के बाद अल्लाह अपने नबी को वाकया बता रहा है। सुनना कैसे बताता है, कहता है अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अब तर्जुमा मैं देखूंगा कि आप सुनने वाले हैं कि नहीं। अब रब क्या कहता है? कहता है महबूब अलम तरा कैफा, क्या आपने नहीं देखा था? क्या आपने नहीं देखा था कि तेरे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया था? अच्छा, ऐसे बंदा किसको कहता है कि यार आपने नहीं देखा था? आज जरा दसो है जो देख रहा हो, जो देख रहा हो, मतलब ये होता है कि तू भी तो देख ही रहा था, आप भी तो ताक ही रहे थे। तो बंदा पूछे बारी ताला, विलादत 50 दिन बाद हुई, कुरान 40 साल बाद उतरा, वाकया पहले हो रहा है, और तू कहता है तुमने नहीं देखा था? तो वो कहता है जल्ले तुझे क्या पता, जब कुछ भी नहीं था, एक वो था एक मैं था और तीसरा था ही कोई नहीं। तो कहा मैं तो तब का भी जानता हूं। अरे ये जिस नबी को तुम उम्मी अनपढ़ कहते हो, ये तो तब की भी बातें बताए जब मां के पेट में रहता था, जब मां के पेट में रहता था। अभी इससे भी पीछे चले जाएं और पीछे चले जाएं। अभी अल्लाह ने कायनात नहीं बनाई थी, सिर्फ रूहों को पैदा किया था। तो अल्लाह ने अंबिया नबियों की रूहों को इकट्ठा किया। अभी जिस्म नहीं बनाए, क्या इकट्ठे किए? रूहों को इकट्ठा किया। जलसा हो रहा है, जैसे आज जलसा हो रहा है, ऐसे जलसा है। आज जलसा होना है, खिताब करना था खुदा ने। खिताब किसने करना है? खुदा ने। और जिस मौजू पे खिताब करना है ना, वो मौजू मुस्तफा है। हाय हाय हाय। आज अल्लाह अपने नबी के मौजू पे खिताब करने जा रहा है। अंबिया को इकट्ठा किया, ये वाकया हुआ। अल्लाह ने मिसाक लिया, वादा लिया कि तुम्हें नबूवत दूंगा, इज्जत दूंगा, मनसब दूंगा। कुरान कहता है दुनिया में जाके मेरे हबीब से वफा करोगे, मेरे हबीब से वफा करोगे। बात गुजर गई, आका की विलादत हुई, कायनात बनी, हुजूर आए, 40 साल बाद कुरान उतरा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना, फरमाया मुस्तफा वो वक्त याद करे। क्या कहा? बोलो बोलो, क्या कहा? वो वक्त याद करे कि जब तेरे रब ने अंबिया से वादा लिया था, जब तेरे रब ने अंबिया से वादा लिया था, यानी जब कुछ भी नहीं था वो तब भी था। हाय 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 हाय, कि मेरा हबीब तब से भी जानता है जब कुछ भी नहीं था। अब ये जो उम्मी लफ्ज है, कुरान अरबी में कहते हैं माँ को। किसको कहते हैं? जहां से बंदे की बुनियाद होती है, कहते हैं। और मक्का को उम्मुल कुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्मुल कुरा। अल्लाह का आका ने फरमाया अल्लाह का अर्श पानी पे था, फिर अल्लाह के हुक्म से खुश्की हुई, तो कायनात में जो पहली जमीन निकली, ये खुश्की निकली, वो काबा था। वो क्या था? काबा, वो काबे की जगह। तो कुरान ने उसे उम्मुल कुरा कहा। क्या कहा? उम्मुल कुरा, कि जहां से जमीन की इब्तदा हुई। जहां से क्या हुई? जमीन की इब्तदा हुई। लौह और कलम को उम्मुल किताब कहते हैं, जो कायनात की पहली कलम और किताब है, जिस पर बंदे के नसीब लिखे जाते हैं। तो अल्लाह ने वो पहली किताब को उम्मुल किताब कहा, जहां से सारे उलूम की इब्तदा हुई, जहां से सारी किताबों की इब्तदा हुई। तो सुनो, जिस जमीन से कायनात की इब्तदा हो उसको उम्मुल कुरा कहते हैं। जिस किताब से उलूम की इब्तदा हो उसे उम्मुल किताब कहते हैं। और जिस नबी मुस्तफा से सारी कायनात की इब्तदा हो उसे उम्मी मुस्तफा कहते हैं। जिस कायनात सारी, अब कहा, क्या कहा? से मुराद बुनियाद,
तो कहा नबीयन रसूलन नबीयल उम्मी, कहा ये रसूल भी है, नबी भी है, और ये वो भी है जिससे कायनात का आगाज किया है, जिससे कायनात का आगाज किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर से, अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। सुनना, मेरे नूर को, बोलो बोलो, मेरे नूर को पैदा किया, और फरमाया फिर अल्लाह ने मेरे नूर के 4 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? सुनो, कितने हिस्से किए? 4। और फरमाया फिर मेरे नूर के चौथे हिस्से से अल्लाह ने फिर 4 हिस्से किए। चौथे हिस्से के फिर क्या किए? 4 हिस्से किए। फरमाया फिर अल्लाह ने उसमें से एक हिस्सा लेकर जन्नत को बनाया। ओए होए होए, किसको बनाया? यानी जन्नत भी मुस्तफा की खैरात से बनी है। हाय हाय हाय, जन्नत भी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात से मिली है। अब मुझे बताओ, जिसकी खैरात से जन्नत मिली है ओ सोनो सी है जन्नत। मैंने अपन सादा जुमला का कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। क्या? कि अब जिसकी खैरात से जन्नत बनी है, जिसने उसको देखा होगा वो जन्नत को देखेगा। ओए होए होए होए, आका मेराज पे तशरीफ ले गए, हुजूर को ना हूरों से मुलाकात कराई गई। आपने फरमाया तू मेरे अली के लिए, तू मेरे उस्मान के लिए, तू मेरे तलहा के लिए, तू मेरे बिलाल के लिए, तू मेरे जुबैर के लिए, तू मेरे अबू बकर के लिए। हूरों की सरदार खड़ी थी बड़ी सज धज के। उसने कहा मैं सरदार हूं, मेरे लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल होगा, कोई अलग से हुक्म होगा। जब बात हुई, तारुफ कराया गया। आका ने देखा, हुजूर ने फरमाया अच्छा तू हूरों की सरदार है? जी या रसूल। फरमाया तू मेरे बिलाल के लिए, तू मेरे बिलाल के लिए। उसने कहा आका ये क्या? उसे उमर, उसे तलहा, उसे जुबैर, उसे अली, उसे अबू बकर, और मुझे रंग का काला बिलाल। हाय 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 हाय, नहीं समझे? मुझे रंग का काला बिलाल। अब हूर को क्या पता था कि तू जिसकी खैरात से बनी है बिलाल रोज उसे देखता है। हाय 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 हाय, बिलाल रोज उस मुखड़े को तकता है जिसकी कसमें रब खाता है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, जब मुखड़ा चमका, जुल्फे मुखड़े पे पड़ी, नूर की चमक उठी, उससे रहा न गया। कहता वद्दुहा, कहता सोनिया तेरे चमकते चेहरे की कसम, सोनिया तेरे मुखड़े की कसम। जब मुखड़े के आगे जुल्फों ने आकर घटा की, रात छा गई, जब अंधेरी हुई तो वो फिर न रह सका। कहता वल्लैली इज़ा सजा, कहता सोनिया तेरियां कालियां जुल्फों की कसम। हाय महबूब तेरी काली जुल्फों की कसम। वो मुखड़ा तकने वाला बिलाल, हूर कहती है रंग का काला बिलाल। मेरे आका मुस्कुरा पड़े। हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया ये तो मैंने अपनी मर्जी से दिया है, ये तो मैंने अपनी मर्जी से दिया है, और पता नहीं मेरा बिलाल तुझे पसंद भी करता है या नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बिलाल मुझे तकता है। आका ने फरमाया मेरे नूर से नूर लेकर अल्लाह ने जन्नत को बनाया, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से नूर लिया, लौह को बनाया, कलम को बनाया, कुर्सी को बनाया, अर्श को बनाया, फिर मेरे नूर से नूर लेकर सारी कायनात बनाई, मेरे नूर से सारी कायनात बनाई। सारी कायनात का हुस्न मुस्तफा के कदमों की एड़ी के बराबर भी नहीं, आका के कदमों की एड़ी के बराबर भी नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने सुना यूसुफ बड़े हंसी थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हंसी थे। आपने फरमाया अच्छा कोई शक नहीं। कहती या रसूल अल्लाह, मैंने सुना इतने हंसी थे कि मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटनी थी देख के। आपने फरमाया हाँ। आपने फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया आज मैं तुझे अपने हुस्न की एक झलक ना दिखाऊं? हाय हाय, तुझे अपने हुस्न की एक झलक ना दिखाऊं? अर्ज की आका दिखाइए। हुजूर ने अपनी इस उंगली से हल्का सा मांस हटाया, नूर की झलक पड़ी, उम्मुल मोमिनीन बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। जब होश में आई तो आका ने पूछा आयशा तो की गुजरी, क्या बीती, क्या हुआ? अर्ज की आका
नूर की झलक ऐसी थी, मैं ताब नहीं ला सकी, बेहोश हो गई। मैं ताब नहीं ला सकी, बेहोश हो गई। तो आका ने फरमाया आयशा सुनो, अल्लाह ने मेरे नूर के हिस्से किए, एक से जन्नत को बनाया, फिर हिस्से किए लौह को बनाया, फिर हिस्से किए कलम को बनाया, फिर हिस्से किए अर्श को बनाया, फिर हिस्से किए कुर्सी को बनाया, फिर हिस्से किए कायनात को बनाया। अल्लाह ने मेरे नूर के 21वें हिस्से से यूसुफ को बनाया, मेरे नूर के 21वें हिस्से से। और जिसके पास 21 हिस्से हैं उसे देख के उंगलियां कटे, जिसके पास 21वां हिस्सा है उसे देख के उंगलियां कटे। तो जिंदे कुल सारे 21 ने, हाय 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 हाय, जिसके पास है सारे ही हैं, उसकी शान का क्या आलम। आका एक दिन मदीने से टहलते हुए ना बाहर निकले तो बाहर एक काफिला ठहरा हुआ था। हुजूर को ना उनके ऊंट पसंद आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊंट बेचोगे? कहते बेचेंगे। रेट तय हो गया। आपने फरमाया मैं ऊंट ले जाता हूँ, पैसे भेज देता हूँ, मैं तो एवं ही टहलने निकला था, कोई खरीदारी करने तो नहीं आया था। वो जब चला गया ना तो उन 3 लोग खड़े थे, उनमें से एक ने 2 से पूछा, उसने कहा तू इनको जानता है? उसने कहा नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूं। उसने दूसरे से पूछा और तू जानता है? कहता मैं भी नहीं जानता। तीसरे से पूछा तू जानता है? कहता मैं भी नहीं जानता। उसने कहा यार जानता ही नहीं और हमने ऊंट दे दिए, पैसे ही क्या नहीं लिए। इतनी बात की ना तो सरदार के खेमे के बाहर खड़े थे। सरदार की बीवी अंदर से बोल के कहती है ओ घबराओ नहीं, वो पैसे दे जाएगा, पैसे दे जाएगा। उसने कहा अच्छा इसका मतलब है आप जानती हैं? उन्हें क्या जान दी मम्मी कोई नहीं, हाय हाय हाय, जानती मैं भी कोई नहीं। तो उसने पहले से पूछा ओ यार तूने क्यों नहीं नाम पूछा? अब सुनना, ये मुस्तफा का हुस्न बता रहा हूं, आका के मुखड़े की बात कर रहा हूं। अब उस पे पता चले कि तुझे मचल जा हुजूर का नाम सुन के। तो पूछा तूने क्यों नहीं पूछा? उस जिससे उसने पूछा ना वो कहता यार अल्लाह की इज्जत की कसम, जब वो बोलता था ना, हाय 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 हाय, जब वो बोलता था तो उसके बोलने की अदा ऐसी थी कि मैं तो बस तकता ही रह गया, मैं तो बस तकता ही रह गया, पूछ ही नहीं सका। हाय 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 हाय, पूछ नहीं सका। उसने पहले से पूछा अच्छा तू बता, और तूने क्यों नहीं पूछा? उसने कहा यार उसकी कोई जुल्फे थी, हाय 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 हाय, उसकी कोई जुल्फे थी। कहता उसकी जुल्फों के कुंडल ऐसे थे, अरे मैं तो उन्हीं खम में ही बच गया, मुझे समझ ही नहीं आई कि नाम भी पूछना था, नाम भी पूछना था। उसने तीसरे से पूछा, उसने कहा तूने क्यों नहीं पूछा? उसने कहा यार जब वो चलता था ना, हाय 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 हाय, जब वो चलता था ना उसके चलने की अदा ऐसी थी कि मुझे कुछ पूछना याद ही नहीं रहा, हाय हाय हाय, मुझे कुछ पूछना याद ही नहीं रहा, मैं कैसे पूछता। उन्होंने सरदार की बीवी से पूछा भाई तू इतने वसूख से क्यों कह रही है, तूने इतनी बात क्यों कह दी? उसने कहा तुमने तो एक एक अदा देखी है, हाय 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 हाय, नहीं समझ आई, तुमने तो एक एक अदा देखी है और मैं उसका आना, उसका बोलना, उसका ठहरना, उसका चलना, उसकी जात, मैं तो उसके अमल देख रही थी। और जो सर से लेकर पांव तक सोने ही छोड़ो वो झूठा हो ही नहीं सकता, जो हर अदा से हंसी हो, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, कि जिसने ये तस्वीर बना डाली वो नबी अल उम्मी, जिसकी इब्तदा से सारे हुस्न फूटे, जिसकी इब्तदा से सारे हुस्न फूटे, सारे हुस्न की इब्तदा हुई, सारी कायनात की इब्तदा हुई, वो कितना हसी होगा, हाय 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 वो। अच्छा चलो ये तो दुनिया की बात है, ये तो लोगों की बात है ना कि दुनिया आशिक थी, मखलूक आशिक थी। आओ अब मैं तुम्हें उसकी बात ना बताऊं जो बना के आशिक हो गया, हाय हाय हाय, जो खुद बना के आशिक हो गया, बनाया
حدیث دینے لگا ہوں، مجھے یقین ہے بہت کم سنی ہوگی آپ نے، یہ حدیث دعوے سے دے کے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن حضرت عمر بن خطاب سے، آپ نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا اللہ نے میرے سے مشورہ کیا، سننا، اللہ نے میرے سے مشورہ کیا اور مجھ سے پوچھا میرا جسد خاکی بنانے سے پہلے، آقا کا جو جسد مبارک تھا وہ بنانے سے پہلے اللہ نے میرے سے مشورہ کیا اور پوچھا، این جی پوچھے ہونا سونے ہوں دس ہاں تینوں کینجدہ بناؤں، ہائے 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 محبوب بتاؤ نا تجھے کیسا بناؤں، تجھے کیسا سجاؤں، تجھے کیسا سنواروں؟ میں نے عرض کی باری تعالیٰ تو مالک ہے، ہائے 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 تو مالک ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، فرمایا جبرائیل جاؤ اور سب سے حسین مٹی لے کے آؤ، سب سے حسین مٹی لاؤ۔ پھر جبرائیل گئے حضور کی قبر انور والی جگہ سے مٹی لی، فرمایا اللہ نے پھر اسے جنت کے نور سے غسل دیا، ہائے 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 جنت کے نور سے غسل دیا، اسے کائنات کے امراض سے دھویا گیا، ربوبیت کے امر سے صاف کیا گیا، چمکا کر سجا کر ایڈا سونا بنایا کہ پھر ویدہ ہی رہ گیا، ہائے 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 کسے ماں نے نہیں ایڈا سونا جایا تے سونے دے مان ترٹ گئے، ہائے 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 کسے ماں نے نہیں ایڈا سونا جایا، اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ اب کائنات بھی سوچتی رہ گئی،